I welcome all of you on my YouTube channel again. Education Highway, the channel name is. Today we are going to read the remaining part of the lesson drought. That lesson was very large lesson, big lesson. So I recorded the lesson in 3 parts. First 2 parts I posted on my channel. And one thing is, this lesson is related to 11th class UP board. This lesson has been taken from short story that is prescribed in 11th class. The hero of this lesson is a poor beggar, Gafur, who was also farming in Kasipur village, living with his daughter Amina and his bull Mahesh. About his sad story we read in 2 parts, and today we are going remaining sad story to read here. The story is about a poor man Gafur who lives in a drought-stricken village with his daughter and Mahesh, an old bull. The story portrays the disparity between the rich and poor, being and living from a minority, and the desperation, persecution that go with it in a rural Indian village. Amina remained standing with bowed head as before. Realizing that there was not even a drop of water in the house, he lost all self-control. What happened when Gafur asked food from Amina? Amina did not reply, and when she replied, she said that there was not rice in the house, so she could not cook the food for Gafur. After that, Gafur asked Amina water to drink because he was very thirsty, but Amina was silently standing, leaned towards the wall and did not answer. Then Gafur lost all self-control. What happened? Rushing at her, उसकी तरफ दौड़ता हुआ, he slapped her face. उसके चेहरे पर वो एक तमाचा मार देता है, एक झापड़ मार देता है, नॉइजली, बड़ी तेज से आवाज. Rest girl, what do you do all day? So many people die, why do not you? दुर्भाग्यशाली लड़की, बेहूदी लड़की, तुम मर क्यों नहीं जाती? बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तू भी मर जा, तेरा क्या काम है? The girl did not utter a word. लड़की ने कोई उत्तर नहीं दिया. इन शब्दों को सुन करके उस लड़की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की. She took the empty earthen pitcher, मिट्टी का बना हुआ खाली घड़ा लेकर के लेती है वो, and went out into the afternoon sun, और दोपहर के बाद के भयानक गर्मी में, सूर्य में, धूप में वो चली जाती है. कैसे जाती है? वीपिंग हर साइलेंट टीयर्स, अपने चुपके बिना आवाज़ किए रोते हुए जो उसके अश्रु निकले थे उनको पोंछते हुए, रोते हुए वो चली जाती है. अगेन क्या होता है? द मोमेंट शी वेंट आउट, शी वॉज आउट ऑफ साइट. जिस क्षण वो चली जाती है, आंखों से ओझल हो जाती है. हर फादर वॉज ओवरवेलमेड, उसका पिता जो है गफूर बहुत ही कृतज्ञ, बहुत ही दुखी, बहुत ही भारीपन महसूस करता है. विथ रिमोर्स, दुख के कारण कह सकते हैं. ही एलोन न्यू हाउ ही हैड ब्रॉट अप द मदरलेस गर्ल. केवल ये चीज़ गफूर अकेले जानता है, उसने किस तरह से लालन पालन किया है एक ऐसी लड़की का जिसके माँ नहीं है, मदरलेस गर्ल थी.
he knew that this affectionate, dutiful, quiet daughter of his was not to blame. वो जानता था इस प्यारी बच्ची जो मुझे प्यार करती है, कर्तव्यपूर्ण है, शांत है, वो दोषपूर्ण नहीं है, उस पर दोष नहीं लगाया जा सकता इन चीज़ों के लिए. They had never had enough to eat even while their little store of rice lasted. वो जानता है कि उनके पास कभी भी इतना नहीं था कि वो भरपेट खा सकें, ठीक है, और उनके ना ही गोदाम में या कह सकते हैं किचन में या ऐसे पात्र में जिसमें राशन रखा जाता, इतना ज़्यादा राशन नहीं होता था कि वो 2-3 बार खा सके. उस पर ये विचार करता है, पश्चाताप करता है कि मैं नाहक उस पर ब्लेम लगाता हूँ. इट वॉज इम्पॉसिबल टू ईट 3 times a day. एक दिन में 3 बार खाना इज इम्पॉसिबल फॉर अमीना डॉटर. नॉर वॉज ही अनअवेयर ऑफ द रीजन फॉर द absence ऑफ वाटर. और ना ही वो उन चीज़ों से अपरिचित है कि क्यों घर में पानी नहीं है. सारे कारण वो गफूर जानता है कि घर में पानी क्यों नहीं है. पानी क्यों नहीं था अमीना के पास? The 2 of 3 tanks in the village had all dried up. 2 में से 3 में से 2 कुआं गांव में जो था, टैंक जो था वो ऑलरेडी सूख चुका है, ड्राइड अप हो चुका है, ख़त्म हो चुका है. The little water had there was still in the private tank of शिबू बाबू. जो थोड़ा बहुत पानी है भी वो एक व्यक्तिगत कुएं में है जो शिबू बाबू का कुआं है. Was not for the public use. वो पब्लिक के लिए नहीं है क्योंकि वो उसका व्यक्तिगत कुआं है. A few holes had been dug at the bottom of the other tanks. कई कुओं में कुछ सुराख, कुछ और खुदाई या उसकी सफाई की गई है जिससे थोड़ा बहुत पानी निकलता है, बॉटम में उसके सफाई की गई है. But there was such crowding and jostling for a little water that this chit of a girl could not even approach them. लेकिन उस छोटे से पानी के लिए वहाँ पर ऐसी भीड़ होती है, वह सच क्राउडिंग, ऐसी भीड़ होती है, एंड जस्टलिंग, इतना धक्का मुक्का होता है, फॉर अ लिटिल वाटर, थोड़े से पानी के लिए, कि यह छोटी बच्ची उस पानी तक पहुँच ही नहीं पाती. कुड नॉट इवन अप्रोच देम. शी स्टूड फॉर आवर्स ऑन एंड एंड. वो घंटों तक, आखिरी समय तक खड़ी रहती है वहाँ पर. आफ्टर मच बेगिंग, बड़ी मांग के बाद लोगों से रिक्वेस्ट करती रहती, थोड़ा पानी मुझे दे दो. इफ़ समबडी टुक पिटी ऑन हर, अगर किसी को उस पर दया आ गई तो वो उसको पानी दे देता है. शी रिटर्न होम विथ अ लिटिल वाटर. ही न्यू ऑल दिस. वो फिर उसी थोड़े से पानी को लेकर के अपने घर वापस चली आती है. ये सारी घटना गफूर जानता है, अच्छे से जानता है. तो वो विचार करता है कि मैंने उसको नाहक झापड़ मार दिया, थप्पड़ मार दिया. परहैप्स देयर वाज नो वाटर टुडे और नोबडी हैड फाउंड टाइम टू टेक पिटी ऑन हर. शायद आज उसको पानी ना मिला हो या किसी को उस पर दया ना आई हो, इसलिए डॉटर के पास आज पानी नहीं है. पुत्री अमीना के पास पानी घर में नहीं था, इसलिए. समथिंग ऑफ द सॉर्ट मस्ट हैव हैपेंड, ही थॉट. इसी तरह से कुछ हुआ होगा अमीना के साथ, इसलिए उसने मुझे पीने के लिए पानी नहीं दिया, उसके पास पानी नहीं था. एंड हीज ओन आइज टू फिल्ड विथ टीयर्स. उसकी अपनी आंखें इन चीज़ों को सोच करके दुख से भर जाती हैं, आंसुओं से भर जाती हैं. गफूर आर यू इन. किसी ने आवाज़ दिया, गफूर क्या घर में हो? समबडी क्राइड आउट फ्रॉम द यार्ड. किसी ने आंगन से आवाज़ लगाई. द लैंडलॉर्ड्स मैसेंजर हैड अराइव्ड. ये कौन, किसने आवाज़ लगाई थी? ये वहाँ के जमींदार का दूत था, संदेशवाहक था जिसने आवाज़ लगाई थी, वो आया. यस आई एम इन. गफूर ने कहा, मैं हूँ. कहिए. वाई, क्यों? आंसर्ड गफूर बिटरली. बड़े कड़वाहट से उसने उत्तर दिया. बोला, क्यों, क्या काम है? मास्टर है सेंड फॉर यू कम. मालिक ने, जमींदार ने आपको बुलाया है, आओ. आई हैव नॉट
हैड एनी फूड एट? गफूर ने उत्तर दिया, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। आई विल कम लेटर सेड गफूर, मैं बाद में आऊँगा, गफूर ने कहा। सच इम्प्यूडेंस सीम्ड इनटॉलरेबल टू द मैसेंजर, इस प्रकार का उत्तर उस संदेशवाहक के लिए असहनीय था। इनटॉलरेबल था, असहनीय था, बर्दाश्त, क्योंकि इस तरह से भाषा गफूर कभी बोलता नहीं था। इट्स मास्टर्स ऑर्डर टू ड्रैग यू टू हिम, मालिक का आदेश है, जमींदार का आदेश है कि तुम्हें घसीट के लाया जाए। एंड गिव यू अ गुड थ्रेसिंग, और तुम्हारी अच्छे से धुलाई सफाई दवाई की जाए। ही रोड, वो चिल्ला पड़ा। कॉलिंग द मैन अगली नेम्स, उसका अभद्रता से नाम लेते हुए वो बुलाता है, चिल्लाता है, दहाड़ता है, रोड करता है। गफूर लास्ट सेल्फ कंट्रोल, जब उसका नाम लेकर के वो उसको चिल्लाता है तो गफूर आत्मनियंत्रण खो देता है सेकेंड टाइम, अब की दूसरी बार। पहला कब खोया? अमीना को जब उसने थप्पड़ मारा। अब की उसने अपने नाम को गाली के तरह इस्तेमाल करते हुए जब सुना संदेशवाहक को तो सेल्फ कंट्रोल खो दिया। वी आर नोबडी स्लेव, कहा मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। रिटर्निंग सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्स, और इसी चीज को दोबारा उसने शिकायत करते हुए कहा कि मैं किसी का नौकर नहीं हूं। बी पे रेंट टू लिव हियर, मैं किराया देता हूं यहाँ रहने के लिए, हम टैक्स देते हैं, किराया देते हैं। आई विल नॉट गो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बट इन दिस वर्ड इट इज नॉट ओनली फ्यूटाइल फॉर अ स्मॉल टू अपील टू अथॉरिटी, इस संसार में, लेकिन इस संसार में ये छोटी मोटी रिक्वेस्ट या इस प्रकार की नाराजगी अमीर या अधिकारी लोगों के लिए कोई मान्य नहीं रखती है गुस्सा पैदा करने के सिवा। इट इज डेंजरस एज वेल फॉर्चुनेटली, जैसा उसका दुर्भाग्य उसके लिए खराब था उसी प्रकार से उसका इस प्रकार का उत्तर देना संदेशवाहक को उसके लिए खराब था। द टीनी वॉइस सेल्डम रिचेज बिग टीयर्स, छोटी छोटी आवाज़, छोटी छोटी रिक्वेस्ट या छोटे लोगों की तकलीफ बड़े लोगों के कान तक बहुत देर में पहुंचती है, मुश्किल से पहुंचती है, ऐसा लेखक ने कहा। आर हु नोज विदाउट माइट हैपेंड, और कौन जानता है किसको क्या होता है, कौन जानना चाहता है, कौन जानता है। व्हेन गफूर रिटर्न होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स, जब गफूर वापस आता है लैंडलॉर्ड के घर से, क्योंकि उसको जबरदस्ती घसीट के मैसेंजर ले जाता है। एंड क्वाइटली ले डाउन, वो चुपके से लेट जाता है। हिज फेस एंड आइज वर सोलेन, उसका चेहरा, उसकी आंखें सूजी हुई थीं। द चीफ काजेज ऑफ सो मच सफरिंग वाज महेश, इन सभी का कारण क्या था? महेश बैल था जिसके कारण उसको आज मार पड़ी थी। व्हेन गफूर लेफ्ट होम दैट मॉर्निंग, जब गफूर उस सुबह महेश को छोड़ता है, जब गफूर अपने घर को उस सुबह छोड़ता है, काम की तलाश में जाता है, तो होता क्या है? महेश ब्रोक लूज फ्रॉम हिज थेथर, महेश अपने रस्सी को कमजोर कर लेता है, तोड़ लेता है। एंड इंटरिंग द ग्राउंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और लैंडलॉर्ड के किसी प्लाट में, किसी खेत में, किसी बगीचे में वो चला जाता है। had eaten up flowers and upset the corn drying in the sun, उसने फूल को तोड़ देता है महेश, और उसके सूखते हुए अनाज को, जो फसल सूख रही होती है धूप में, उसको वो तितर बितर कर देता है, बिखेर देता है, खाता है। इसलिए गफूर को मार पड़ती है। When finally they tried to catch him, और जब गफूर को जमींदार के नौकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, ही हैड हर्ट द लैंडलॉर्ड यंगेस्ट डॉटर, तो महेश लैंडलॉर्ड के सबसे छोटी बेटी को भी चोट पहुंचा देता है, मार देता, उसके कारण वो चोटिल हो जाती है। एंड हैड एस्केप्ड, और महेश को कोई पकड़ नहीं पाता, वो बच के निकल लेता है। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये प्रथम बार ऐसी घटना नहीं हुई है। दिस हैड हैपेंड, ऐसा पहले भी हुआ है, ये प्रथम घटना नहीं थी। बट गफूर वाज फॉरगिवन बिकॉज ही वाज पुअर, गफूर हर बार माफ कर दिया जाता था, क्यों?
क्योंकि वो गरीब था। इफ़ ही हैड कम राउंड, अगर वो चला आता उसी तरह से जैसे पहले चला जाता था बुलाने पे, एज एन अदर अकेजन, जैसे दूसरे अवसर पर बुलाने पे चला जाता था, और बेग्ड फॉर द लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस, और लैंडलॉर्ड से अगर प्रार्थना करता कि मुझे माफ़ कर दो, तो हो सकता था वो माफ़ कर दिया जाता। ही वुड प्रोबेबली हैव बीन फॉरगिवन, तो वो संभवतः माफ़ कर दिया जाता। He would probably have been forgiven, but instead he had claimed that he paid rent. लेकिन उसने अब की वहाँ जाने से मना कर दिया और ये कहा कि मैं किराया देता हूँ, रहता हूँ। तो ये बहुत ही खराब उत्तर था लैंडलॉर्ड के लिए। That he was nobody's slave, उसने ये भी कहा कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, ये भी बड़ा खराब आंसर था। दिस वॉज टू मच फॉर शिबू बाबू, ये शिबू बाबू के लिए बड़ा ही खराब था। जमींदार, किसका नाम है शिबू बाबू? जो वहाँ का जमींदार है, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है। टू सालो, इस चीज़ को जमींदार बर्दाश्त नहीं कर सका। गफूर हैड बोर्न द बीटिंग एंड फॉर टॉर्चर विदाउट प्रोटेस्ट, गफूर को खूब ज़्यादा मार पड़ी, खूब परेशान किया गया, बिना किसी सहायता के, बिना किसी बात के, इन्हीं बातों के कारण कह सकते हैं, बिना किसी हेल्प के। कोई बचाने वाला कहने का मतलब नहीं था। एट होम, जब वो घर पे था। टू, वो घर पे बहुत ज़्यादा था। ही ले इन अ कॉर्नर, वो कोने में लेटा हुआ था। विदाउट अ वर्ड, कोई भी शब्द नहीं बोला। मार खाने के बाद गफूर अपने घर लौट आया और कोने में बड़ा लेटा हुआ था। हंगर थ्रस्ट ही हैड फॉरगॉटन, भूख और प्यास उसकी खत्म हो जाती है। बट हिज हार्ट वाज बर्निंग विथिन हिम लाइक द सन आउटसाइड, लेकिन उसका दिल जल रहा था जैसे कि बाहर सूर्य आसमान में जल रहा था, भीतर गफूर का दिल भी उसी तरह से जल रहा था, वो गुस्से में था, कहने का मतलब। ही केप्ट नो काउंट आप हाउ टाइम पास्ट, उसको पता भी नहीं चला कितना वक्त बीत चुका है। उसी गुस्से में वो मारपीट जो उसको पड़ी थी, वो चुर रहा था, उसी गुस्से में वो बैठा रहा। ही वॉज सडनली शॉकन आउट ऑफ हिज लिस्टलेसनेस बाई आ श्रीकन ऑफ गर्ल, वो अचानक उठ पड़ता है, उसकी जो मुद्रा थी शांत बैठे रहने की, वो भंग हो जाती है, अचानक उठ पड़ता है। क्या? अमीना की चिल्लाहट को सुन करके, तेज आवाज को सुन करके। शी वाज प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, अमीना को ग्राउंड में पटक दिया या गिर गई। द पिचर व्हिच शी हैड बीन कैरिंग टम्बल्ड ओवर, जो घड़ा लेकर के अमीना घड़े भर पानी लेकर के आ रही थी, वो लुढ़कते लुढ़कते आगे बढ़ गया। एंड महेश वाज सकिंग अप द वाटर एज इट फॉलोड ऑन द अर्थ, जो पानी धरती पे गिरा, ग्राउंड पे गिरा, उसको महेश चाट रहा था, पी रहा था, चाट रहा था। गफूर वाज कंप्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड, गफूर अब अपना पूरा आत्मनियंत्रण, पूरा होश हवास खो देता है। विदाउट वेटिंग एन अदर मूवमेंट, कोई भी इंतज़ार किए बगैर, बिना किसी मूवमेंट का इंतज़ार किए बगैर, ही सीज्ड हिज प्लाउज हेड ही हैड लेफ्ट स्टरडे फॉर रिपेयर, उसने हल का फार, जो हल बैलों का हल होता है, उसमें एक आगे लकड़ी का हल होता है, पर उसमें लोहे का फार लगाया जाता है, तेज धार उसमें होती है, जिसको उसने कल ही रिपेयर के लिए दिया था। उसी हल के फार से, प्लाउज हेड से, वो महेश पे वार कर देता है, प्रहार कर देता है। एंड विथ बोथ हैंड्स, पूरे हाथ से, स्ट्रक इट वायलेंटली ऑन द बेंट हेड ऑफ महेश, महेश सर झुकाए हुए पानी चाट रहा होता है ग्राउंड में, और उसी हेड पे वो पूरे हाथ से, दोनों हाथ से बल लगा के हल का फार मार देता है। फिर क्या होता है? वंस ओनली महेश अटेम्प्टेड टू राइज हिज हेड, महेश केवल एक बार अपना हेड उठाने की कोशिश करता है। बट इमीडिएटली हिज स्टॉर्मिंग लीन बॉडी स्टैगर्ड टू द ग्राउंड, लेकिन तुरंत, अचानक कह सकते हैं, उसका कांपता हुआ शरीर ग्राउंड में शांत पड़ जाता है। लीन्ड बॉडी स्टैगर्ड टू द ग्राउंड, छटपटाता रहता है।
अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड फ्रॉम हिज ईयर्स रोल्ड डाउन। कुछ खून की बूंदें महेश के कान से ग्राउंड में निकलती हैं। हिज होल बॉडी शॉक वंस आर ट्वाइस। उसका पूरा शरीर एक या दो बार झटका लेता है। एंड देन स्ट्रेचिंग द फोर एंड हिंड लेग्स एज फार एज दे वुड रीच। और पूरा वो पैर फैला देता है। स्ट्रेचिंग द फोर लेग्स एंड हिंड्स लेग्स, फोर एंड हिंड लेग्स एज फार एज दे वुड रीच। जितना हो सकता है वो अपने चारों पैरों को फैला के छटपटाता है। फिर क्या होता है, महेश फेल डेड और महेश मर जाता है। व्हाट हैव यू डन फादर? पिताजी आपने क्या किया? और महेश इज डेड। मेरा महेश मर चुका है, हमारा महेश मर चुका है। अमीना ब्रस्ट आउट बीपिंग। अमीना तेज से रो पड़ती है, चिल्लाने लगती है। गफूर डिड नॉट मूव नार आंसर हर। गफूर ना तो चलता है, ना मूव करता है, ना उसको उत्तर देता है। ही रिमेन्ड स्टेरिंग विदाउट ब्लिंकिंग एट अ पेयर ऑफ मोशनलेस। बिना किसी चीज़ को कहे वो वहाँ पर उसको देखता रहता है, एकदम साइलेंट, स्तब्ध रह जाता है, कह सकते हैं ब्लडलेस हो जाता है। ब्रेडी ब्लैक आइज, अपनी काली आंखों से उसको निहारता रहता है। बिफोर 2 आवर्स, 2 घंटे पहले, बियर आउट, बाहर, द टेनर्स लिविंग एट द एंड ऑफ द विलेज। मरे हुए पशुओं को उठाने वाले गांव के बाहर थोड़ी दूर पर रहते हैं। 2 घंटे बाद क्या होगा? केम क्राउडिंग इन एंड कैरिड ऑफ महेश ऑन अ बम्बू पोल। वो आएंगे और महेश को एक बांस के लट्ठे पर बांध करके ले जाएंगे। शडरिंग एट द साइट ऑफ द शाइनिंग निप्स इन देयर हैंड्स। और उनके हाथ में मरे हुए जानवरों को काटने वाला चाकू जिसमें तेज धार होती है रहेगी। गफूर क्लोज्ड हिज आइज बट डिड नॉट स्पोक। गफूर ये चीज़ सुनता रहता है, ये डायलॉग अमीना बोलती है। ये सुन करके वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ भी नहीं बोलता है। स्पीक, डिड नॉट स्पीक, वो कुछ भी नहीं बोलता है। द नेबर्स इन्फॉर्म हिम। पड़ोसियों ने उसको सूचना दे दी। दैट द लैंडलॉर्ड सेंड फॉर तारक रत्ना टू आस्क फॉर हिज एडवाइस। लैंडलॉर्ड ने अपने सिपाही को, अपने दूत को तारक रत्न पुजारी के पास भेजा है कि इस मैटर में क्या किया जाए। हाउ वुड गफूर पे फॉर द पेनेंस। इस सज़ा की भरपाई गफूर कैसे अदा करेगा, इसके बारे में पूछने के लिए। व्हिच द किलिंग ऑफ अ सेक्रेड एनिमल डिमांडेड। एक पवित्र पशु को मारने की क्या सज़ा होती है, आर्थिक उसकी भरपाई कैसे की जाए, इस बारे में बात करने के लिए तारक रत्न को बुलाने के लिए जमींदार ने भेजा है। गफूर मेड नो रिप्लाई टू दीज रिमार्क्स। ये सुनने के बाद भी गफूर कुछ भी नहीं बोलता है, केवल सुनता रहता है। बट रिमेन्ड स्क्वैटिंग, साइलेंट वो खड़ा रहता है। विथ हिज चिन रेस्टिंग ऑन हिज नी। अपने घुटनों पर अपने दाढ़ी को रख करके झुकाए हुए वो वहाँ पर रुका रहता है, बैठा रहता है। अमीना डियर कम लेट्स गो। पुत्री अमीना आओ हम चलते हैं। सेड गफूर, गफूर ने कहा। रसिंग हिज डॉटर एट द डेड ऑफ नाइट। उस भयानक रात में अपने बेटी को पकड़ के खींचते हुए। शी हैड फॉलन एस्लीप इन द यार्ड्स। वो सो गई थी, रात हो गई थी, वो सो गई थी। गफूर जो है बैठा था, अपने घुटने पर अपनी दाढ़ी को रखे हुए बैठा हुआ था। तभी वो चिल्लाता है और कहता है पुत्री अमीना आओ चलें। उसका हाथ पकड़ता है उसको जगाते हुए। व्हेयर फादर सी आस्क्ड रबिंग हर आइज। पिताजी कहाँ चलें, अपनी आँख को मलते हुए अमीना बोलती है। टू वर्क एट द जूट मिल एट फलवेरे।
काम करने के लिए जूट मिल में फलवेरे एक स्थान है, फुलवेर एक स्थान है वहाँ पर, सेट फादर पिताजी बोलते हैं। द गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्रेडुलसली, बड़े विचित्रता से वो लड़की अपने पिता को देखती है। इनक्रेडुलसली बड़े विचित्रता से, बड़े आश्चर्य से कह सकते हैं। थ्रो ऑल हिज मिजरी ही हैड क्लेम्ड टू गो टू फलवेरे, बहुत सारा तकलीफ हुआ और जब उसने वहाँ जाने की बात कही, ही हैड डिक्लाइंड टू गो टू फलवेरे, जितनी बार इतनी मुसीबत पड़ी कह सकते हैं, थ्रो ऑल हिज मिजरी, बहुत सारी मुसीबत झेलने के बाद भी, ही हैड डिक्लाइंड टू गो टू फलवेरे, वो गफूर जो है वहाँ जाने के लिए मना करता है, क्योंकि वहाँ नो रिलीजन, नो रिस्पेक्ट, नो प्राइवेसी फॉर वुमेन फॉल्क देयर, वहाँ पर न धर्म है, न सम्मान है, न कोई एकांत है, न वहाँ महिलाओं की कोई इज्जत है। सी हैड ऑफन हियर्ड हिम से, अमीना कई बार अपने पापा को ऐसी बात करते हुए सुन चुकी है। हरी अप माई चाइल्ड, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, जल्दी करो बेटी चलते हैं, हमको बहुत लंबा रास्ता चलना है, सेड गफूर ने कहा। अमीना वाज गोइंग टू कलेक्ट द ड्रिंकिंग बाउल एंड हर फादर्स ब्रास प्लेट, अमीना जाती है कि पानी पीने का पिताजी का कटोरा ले लें और वो ब्रास वाली प्लेट ले लें जो अक्सर पिताजी गिरवी रखाते थे। लीव देम एलोन, उन सारे बर्तन को छोड़ दो। दे बिल पे फॉर द पेनेंस ऑफ महेश फॉर महेश, वो लोग उस कटोरे से और ब्रास प्लेट से महेश के दंड की भरपाई कर लेंगे, उसको वहीं छोड़ दीजिए, सेड गफूर ने कहा। इन द डेड ऑफ नाइट, भयानक रात में, गफूर सेट आउट, गफूर चल देता है, निकल लेता है। होल्डिंग हिज डाटर बाई द हैंड, अपने बेटी को हाथ से पकड़े हुए। ही हैड नोबडी टू कॉल हिज ओन इन द विलेज, उसका गांव में कोई नहीं था जिसको वो अपना कह सके। ही हैड नथिंग टू से टू एनीबॉडी, उसके पास कहने के लिए किसी को कुछ भी नहीं था गांव में। क्रॉसिंग द यार्ड्स, अपने आंगन को पार करते हुए। व्हेन ही रीच्ड द अकेसिया, जब वो बबूल के पेड़ के पास पहुंचता है, ही स्टॉप्ड, स्टुक स्टिल एंड ब्रस्ट आउट कैरिंग लाउडली, वो वहाँ पर रुक जाता है, खड़ा हो जाता है और बड़ी तेजी से चिल्लाने लगता है। अल्लाह, ही सेड, राइजिंग हिज फेस टूवर्ड्स द ब्लैक स्टार स्पेंगल्ड स्काई, आसमान में बिखरे हुए काले काले रात्रि में वो आसमान की तरफ मुंह करके, फेस करके चिल्ला के कहता है, अल्लाह, क्या कहता है, पनिश मी एज मच एज यू लाइक, आप मुझे दंड दो, जितना दे सकते हो दंड दो, क्योंकि महेश डाइड विथ थ्रस्ट ऑन हिज लिप्स, महेश प्यास के कारण, उसके प्यास के कारण मरा है। नोबडी लेफ्ट द टीनिएस्ट बिट ऑफ लैंड फॉर हिम टू फीड ऑन, किसी ने जरा सी जमीन नहीं छोड़ी कि जहां पर हम महेश को चराने ले जाएं। प्रे नेवर फॉरगिव दोज दियर गिल्ट हु नेवर लेट हिम ईट टू द ग्रास आर ड्रिंक टू द वाटर यू हैव गिवन, और उनको भी दंड करिए, उनका भी शिकार करिए, कभी भी उनको माफ़ ना करिए। नेवर फॉरगिव टू दोज, जो इसके लिए गिल्टी हैं, अपराधी हैं, उनको कभी भी आप क्षमा मत करिए। हु नेवर लेट हिम ईट, जिसने महेश को कभी कुछ खाने नहीं दिया, जिन लोगों ने ना तो घास ना तो पानी पीने दिया, उनको आप कभी क्षमा न करिए, क्योंकि ये पानी, ये घास, ये मैदान आपका दिया हुआ है। ये कहते हुए महेश अपने दुख को व्यक्त करता है, अपने आंगन में खड़ा होकर के आसमान की तरफ सर करके चिल्लाता है और फिर चला जाता है। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। ये कक्षा 11 का पाठ है जो शॉर्ट स्टोरी से आप लोगों को पढ़ाया जाता है। ये
पाठ बहुत बड़ा था, इसलिए इसको हमने 3 पार्ट में रिकॉर्ड किया है। ये उसका तीसरा पार्ट है। आप लोग इसको पढ़ें और अच्छे से सीखें। लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।